ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚਾ, ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚਾ, ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਧਾਤ। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 145 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਾਗ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਵਾਵੈ ਗਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਜਲ ਨਹਾਵੈ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਏ ਰਚਾਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ,
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਈ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜੇ ਆਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोलक, छूट गई संसारी। को सतनाम श्री। ते सब तो कीमती ਤਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਇ ਰਚਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤੋ ਭਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ। ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ।
हर फरमान दरगाह के आया तो मेरे वर्गा कहना भाई 2 दिन होर ठहर जो फिर चलते हैं। करो अरदास गांव के चबाकी, क्यों फिर की करना है। कहते कई पिंडों का हाला मामला इकट्ठा कर लिया, 2 पिंड रह गए, मैं वो भी कर ला। कहते जो इकट्ठा किया वो भी नहीं चलना, जिहड़ा रह गया वो भी नहीं चलना, तू चल। करो अरदास गांव के चबाकी। तो फिर पता की कहना संसारी बंदा, लेहो निवेर आज की राती, कहना मैं राते नाल इकट्ठा कर लेना। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, तुहानू भी विचों दे दूंगा। धर्मराज के जमदूतां नूं कहंदा तुहानू भी हिस्सा दे दूंगा। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, अब की रात सराए गुजारो। एक रात कट लो। कहते रात बहुत लम्मा टाइम हो गया, एक साह नहीं मिलता, तू खड़ा हो, चल तुर, ये समान छड़ दे इत्थे सारा, इत्थों कुछ भी ना पैसा टका ना सोना चांदी ना वस्तुआं नाल नहीं जानिया, तू चल जिहड़े सवास लैके आया सी वो कित्थे खर्च कीते ओ दस मैनू। को सतनाम सी। चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह के आया। ते बंदे दी फितरत उही है जिवें इत्थे दिंदा लोकां नूं रिश्वतां, उवें रब नूं रिश्वत देनी चाहुंदा, पर वो रिश्वत लैंदा नहीं। वो तो सारे समान का आप मालक है। बंदा रिश्वतां दे दे के धर्म नूं खरीदना चाहुंदा है, बंदा रिश्वतां दे दे के जिवें गुरु प्यारो राजनीति नूं खरीद लैंदा। को सतनाम। लेकिन धर्म पैसे नाल नहीं खरीदिया जाता, धर्म तो कमाउणा पैना अपने आप। गुरु किरपा करन। मेरे प्रीतम जी कहंदे महाराज तू वड्डा है, किते तू मिल जावे तो मैनू सब कुछ मिल गया। बेअंत इहो जिहियां उदाहरणां इतिहास विच गुरबाणी विच पईआं है। जिवें कल परसों आपां एक शाम की कथा विसाखी पढ़ रहे सी कि धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ते बहादुर शाह आपो अपनियां फौजां नाल जंगल विच शिकार खेडण चले गए। तो बहादुर शाह कहना कुदरती जंगल चों एक शेर निकल आया भयानक। बहादुर शाह कहना भी जिहड़ा शेर नूं ढाल ते तलवार नाल मार दूगा मैं उन्होंने मूँह मंगिया नाम देवांगा। तो बहादुर शाह दी लश्कर चों 2 जरनैल वारी वारी अगे वधे ढाल ते तलवार लैके। ते शेर ने एक नहीं गिनती, मारिया 5 सिट ले, दोने मारते। हुण बहादुर शाह दे लश्कर विचों कोई अगे नहीं वधदा शेर नूं मारन वास्ते। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी वाल इशारा किया, जी तुहाडा कोई सिंह मार सकदा है? कहंदे रोशन सिंह देखता नाल सिंह आ पातशाह रोशन सिंह, वो अगे बढ़िया ढाल ते तलवार लैके, और एक हाथ विच उहने छोटा शास्त्र फड़िया खंजर जमतर जो नेड़ियों मारिया जाता है। शेर दे नाल पैंतरा खेडदा होया रोशन सिंह खब्बे हाथ विच ढाल फड़ी है, जिधरों हमला करना उधर ढाल करदा है। ते जदों शेर ने हमला किया, पंजे ढाल ते आए ते थल्लियों जमतर मारी बखी चलटा के परे सिटता। कहूँ सतनाम सी। सारे खुश हो गए। बहादुर शाह कहता बोल की नाम देवा? कहता तैथों की नाम लेना, मेरे नाल सारिया वस्तुओं का मालक गुरु गोबिंद सिंह है, तैथों कुछ नहीं लेंदा मैं। कहूँ सतनाम सी। तू तो आ मंगता है ते मेरे नाल मेरा दाता है, ये सारा इसे दा काम है, शेर मारना भी यदा काम है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो खालसे ने प्राप्ति की वो भी वाहिगुरू दी है, ते ओदा सेहरा भी वाहिगुरू दा है। कहूँ सतनाम श्री। इस करके जे जा तू वड्डा तो सब वड्डियाइयां चंगे चंगा होई, जे तू मिल जाए तो मैनू कुछ नहीं चाहिदा। कहूँ सतनाम श्री। बिन तो होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख, गुर वंटन हरिया कीतिया, नानकिया मनुख। बंदा तो की ये तो सुक्कियां लकड़ां हरियां कर दिंदा। कहूँ सतनाम। बंदे की किहड़ी गल है? बाबा आदम सिंह 70
65-70 साल की उम्र, ਉਹਦੀ घरवाली वो भी 65-70 साल की वड्डी उम्र की, गुरु रामदास जी के चरणों में चले गए। चंगी संपत्ति सी, चंगी भूमि सी, जमीन बहुत सी, पर बच्चा कोई नहीं सी होया। बड़े उपाव किते, किते भी गल ना बनी। अखीर अंमृतसर साहब चले गए। बेबे लंगर सेवा करती रही तो बजुर्ग लकड़ा लिया रहा जंगल चों कट्ठियां करके सुक्कियां। 2 गेड़े लाउंदा बजुर्ग, एक स्टोर कर दिंदा ते एक लंगर च पा दिंदा। जिहड़ियां स्टोर कीतियां लकड़ां भी काफ़ी हो गईयां। एक दिन पोह माघ दा महीना, कड़का ठंड, संग ठोठर करे। बाबा आदम सिंह कहन लग्या भी कंबी क्यों जाने हो बई, वो लकड़ां पईयां, धूणियां पाओ सारे जने। रात नूं धूणियां पातियां। अद्धी रात नूं आकाशां विच प्रकाश हो गया, क्यों कई धूणियां पातियां। ते रामदास पातशाह गुरुद्वारा साहब गुरु के महल उत्थे रिहायश सी। उतों ताहां चढ़ के देखदे भी इन्नी लैट काहदी हो गई है। तड़के दीवान सजिया, कहंदे भी रात धूणियां कित्थों पाईयां, लकड़ कित्थों लई। कहंदे जी वो एक मालवे चों, बठिंडे दे इलाके चों ना बाबा आदम सिंह आया, जंगल दे इलाके चों। उन्हें लकड़ कट्ठी की सी। 2 गेड़े रोज़ लाउंदा, एक लंगर च पा दिंदा बालन ते एक रख लैंदा सी। अज ठंड वाली सी, वो कहंदा धूड़ियां पा लो, सी पा लियां। कहंदे सद के लियाओ। बाबे आदम सिंह जी नूं सद लिया। बापू तेरी सेवा पूरी हुई, मैं बड़ा खुश होया, बोल की चाहिदा। हुण इधर संगत बैठी आ, इधर आपदी उम्र कन्नी वेखदा है, उधर गुरु दियां दातां कन्नी वेखदा। कहंदा जी कुछ नहीं चाहिदा। कहंदा नहीं नहीं, जो लैन आया वो मंग ला, जानदा मैं, पर तू मूँह चों कह एक बारी। कहंदा जी नहीं कुछ नहीं चाहिदा। एक बचन होर है, मंग ला, नहीं तो कल नूं ਉਹਨੂੰ अपनी घरवाली नूं लैके आई नाल, कहो सतनाम सी। कहंदा जी ठीक आ। रात नूं जाके जिथे किते उन्हां दी रिहाइश कराई सी रामदास ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। कहन लगे भागवान ने अपनी सेवा कहने पूरी हो गई, तो मैनू महाराज कहने कुछ मंग ला ते भलिए 70-80 साल की उम्र हुई पई है, तो मंगते चंगे लगते हैं। कहनी मंग लेना सी, इन्नी जमीन साडी एवें जाती आ, मालक तो चाहिए घर का, कहो सतनाम सी। कहना मैथों नहीं मंगया गया, फिर तू ही मंग ली। तड़के तेनों सद्दिया उन्होंने, तड़के दोने आ गए, पातशाह दे हजूरी च हाजिर होए। सतगुरु रामदास पातशाह कहने हाँ भाई दसो की चाहिदा। बापू तो चुप खड़ा रहा। बेबे कहनी महाराज घरे सब कुछ है, किसी चीज़ का घाटा नहीं, पर घर का मालक है नहीं गा, कोई बच्चा चाहिए सी। सारिया थावां ते जाके आ गए, कितों खैर नहीं पई, बस आही दा रहिंदा सी कल्ला। हुण इत्थे आ गए। पातशाह ने नेत्र बंद किते, 2 मिनटां बाद खोल के कहने सोडे तो कर्म च लिखिया ही नहीं गया। कहने वो तो सानू पता ही है, महाराज लिखिया हुंदा तो हो ही जाता, कोई सतनाम सी, पर तुसी सेवा कीती आ। मैं किसी का हिसाब किताब रखदा नहीं गा, एक तिल नहीं भन्ना घल है, इत्थे कोई झाड़ू भी मार गया वह भी हिसाब किताब करदा है, कोई सतनाम सी। मैं तो किसी का तिल जिन्ना हिसाब नहीं रखता, तुसीं तां सेवा बड़ी कीती आ। माई ने लंगर च प्रशादे बनाए आ, बजुर्ग ने लकड़ां लिया के लंगर च पाइयां, पर सोडे कर्मां च लिखिया नहीं। कहना जी सोनू पता, सानू नहीं पता। कहते भी ऐं गल है भी मेरे 4 पुत्र होने आ, 3 तो हो गए, 1 रह गया, तो चौथा सोडे घरे भेज दिन्ने आ, कोई सतनाम सी। मैं आपदे खजाने जो भेज दिना। फिर पिरथी चंद, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ते महादेव, ये 3 पुत्र रामदास जी दे हो चुके सीगे। कहते साढ़े चौथा पुत्र एक होर है, पर वह हुण सोडे पैदा होगा, 1 साल बाद हो जाऊगा, वो भगत होगा, उन्होंने भगतू नाम रखे ओदा। बाकी साल बाद इन्हां दे घर फिर पुत्र होया। बजुर्ग तो चाले पा गया, पर मुड़ के माँ पुत जिउंदे रहे, कोई सतनाम श्री। इसदा नाम भगतू रखिया गया।
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤੂ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਧਰ ਭੇਜਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਖਲਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 3-4 ਕੋਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇੜਾਂ ਬੈਠੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਸੀ ਸੁੱਕੀ, ਵਿੱਚ ਤੇੜਾਂ ਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਤੇਲ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸੇ ਕਾਢੀ, ਥੱਲਿਓ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਢੱਕ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਭਗਤੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਚਲੋ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛਪੜੀ ਭਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਐਸਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਛਪੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਧਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ ਛਪੜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ, ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛਪੜੀ? ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਭਗਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਬਦਲਤੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਤੀ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ? ਨਾ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਡਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਵਾਹ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਫੜ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰ। ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਏਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
जे तू चंगा मिल गया तो मेरे अंदर तेरी कृपा हो गई तो फिर मैनू सारे ही चंगे लगते हैं, मैनू कोई माड़ा लगता ही नहीं गा। चंगा चंगा होई जा तू सच्चा सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई महाराज, फिर मैनू कोई झूठा दिसदा ही नहीं गा। आखन बेखन बोलन चलन जीवन मरना धात। धात की है? धातु हुंदा तत्त, जिमें सोना तुहाडे च वालियां है, चाहे मुंदरी है, चाहे कड़ा है, चाहे छाप है, चाहे कंठी है, उन्हां गहणियां दा तत्त की है? सोना। जे वो गहने सारे भन्ने जान तो बाकी की बचदा है? सोना। ना हार बचदा, ना मुंदरी बचदी है, ना कड़ा बचदा है। उन्हां दे नाम निशान खत्म हो जाते हैं, अखीर तत्त बच जाता है बई ये सोना है। इस तरह ही असी जिन्हों ये प्राप्ति हो गई, जिन्हों सच्चा मिल गया, उन्होंने बोलन वाला भी रब दिसदा है, वेखण वाला भी रब दिसदा है, कहण वाला भी रब दिसदा है, तुरिया जांदा भी रब दिसदा है, जिउंदियां विच भी रब दिसदा है, मरण तो बाद शहीदां विच भी रब दिसदा। कहो सतनाम। मरिया होया विच भी वो दिसदा। भाव उन्हां दी बिरती ही ऐसी कर दी परमेश्वर ने कि हर थां ते धात भाव परमेश्वर दिसदा, होर दिसदा ही नहीं कोई। जिमें एक्सरियां वालियां मशीनां, एक्सरे वालियां मशीनां बाहरले कपड़े छड्ड के, मांस छड्ड के अंदरों हड्डियां नूं जा वेखदियां। इस तरह ही उन्हां दी कृपा दृष्टि ऐसी होई उन्हां ते, जिन्हां ते उहदी कृपा दृष्टि हो गई, उन्हां नूं बाहरों शरीर दिसदे नहीं, अंदरला दिसदा है। कहो सतनाम। धात भाव तत्त, आत्मक तत्त परमात्मा अंश, ओहो ही दिसदा, होर दूजा दिसदा ही नहीं। ये कौन है? कहो सतनाम श्री। हुक्म साज हुक्म विच रखै, नानक सच्चा आप। जिन्हां ते वो कृपा करदा है, उन्हां नूं अपने हुक्म दे विच चलाउंदा है ते उहदे हुक्म अंदर चलदे है। जिवें भाई कन्हैया जी नूं कोई होर नहीं दिसदा। एक छोटी जी कहानी याद आ गई। एक साध दे दो चेले आ ते दोवां चों एक नूं गद्दी देनी आ, पर टेस्ट करना भी किहड़ा सही आ। जिवें अमरदास महाराज जी ने भाई रामा ते भाई जेठा दी जिहड़ी परीक्षा लई सी। कहो सतनाम श्री। कहंदे साध ने की कीता, दो पंछी ले, कबूतर कह दिओ, दो पंछी उन्होंने फड़ाते भी ऐ करो, इन्हों मार के लियाओ ते मारियो उत्थे जिथे कोई वेखदा ना होवे। कहो सतनाम श्री। फिर मैं गद्दी का फैसला करूँगा भी किहनूं देनी है। एक खब्बे चलिया गया, एक सज्जे चलिया गया। जिहड़ा खब्बे गया सी, थोड़ी दूरी गया, किसी कंध का ओटा किया, ओले होया, धौन मरोड़ती, फटाफट मुड़ आया भी मैं गद्दी लैनी आ। कहते लो जी मार लिया, कहते रख दे, दूजे नूं आ जाण दे। इधर उड़ीकी गए, मुड़िया ही नहीं 4-5 घंटे। 4-5 घंटिया बाद मुड़ के आया। जो छेती मुड़ाया वो सोचता मैं पहला आ गया, मैं तो गद्दी ले ही लैनी है। हुण वो 4-5 घंटिया बाद मुड़ के आया तो जिउंदा ही चक्की आउंदा है। साधु कहन लग्या बई तू इनू मार के नहीं लियाया। कहते महाराज तुहाडा की हुक्म सीगा बई जिथे कोई वेखदा ना होवे उत्थे मारना है। कहते हाँ। फिर मैनू कोई इहो जिहा थां ही नहीं लभ्या जिथे कोई वेखदा ना होवे। कहते आ तो मार लियाया कंध ओले होके। कहते मार लियाया होगा, पर मैं जिथे भी जाके मारन की कोशिश की उत्थे कोई ना कोई वेखदा सीगा। जिथे नहीं भी कोई वेखदा सीगा उत्थे मारन लग्या, उत्थे ये मैनू वेखदा सी, मैं इहनू वेखदा सी। कहो सतनाम। फिर दसो मारदा किथे? कहते तू ही काबल है असल च गद्दी दे जिहड़ा हर थां ते परमेश्वर नू देखण लग जावे। प्रीतम जी कहने हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप। ओ परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा है जदों अपने सेवकां दे उत्ते किरपा करदा है तो उन्होंने अपने हुक्म द्वारा सारी सृष्टि दे विच ज्ञान करा दिंदा है कित्थे की है कौन है। कहो सतनाम श्री। घट घट मैं हर जू वसै संतन कहो पुकार,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌੜੀ ਆਓ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਐ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहने, बंग के बंगाली हैं कि दिल्ली के दिलवाली हैं, सब तेरी आज्ञा में चलता है, पर अंदर असल में ओही चला रहे हैं सब नूं। चाहे कोई बंगाल दे है, चाहे दिल्ली के दिलवाली दिल्ली दे रहने वाले हैं, चाहे कोई चाइना दे है, ते चाहे कोई भारत दे है, ते चाहे संसार दे विच किते है, इन्हां सारियां दा मालक एक है। को सतनाम, सब का मालक एक है, सब नूं चलाउण वाला एक है। भाषा का फर्क हो सकता है पर अंगां का कोई फर्क नहीं, साडियां दा रंग रूप का फर्क हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, भाषा का फर्क हो सकता है, कपड़ियां का फर्क हो सकता है, पंजाबियां दे होर है, मारवाड़ियां दे होर है, साडी पग होर तरह की, उन्हां दी रस्सा जा बना के बनते हैं। पर गुरु गोबिंद सिंह जी का यह बचन अपनी बाणी विच कि ये सारे तेरे ही हुक्म अंदर चल रहे हैं, हुक्म साज हुक्म विच रखे, नानक सच्चा आप, पर इन्हां सारिਆਂ चलाउण वाला ओह इक्को ही आ। सिखो अकाल पुरख है, पौड़ी आ फिर जे तू भी ये आनंद लेना है, सतगुर सेव निशंग, निशंग हो जा। लभ लैंदे ने काफर होके खोजी अंत टिकाणा, काफर होके धर्मां तो बाहर निकल के, धर्मां दी जिहड़ी संसार ने बनाई आ, जिहड़ा धर्म असली है ना, वो तो गुरु अर्जन देव जी नूं पुछ लो। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म। असली कर्म तो इहो ही आ, ये इंसानीयत है। ते जिहड़ियां वाड़ां बनाईयां संसार ने, ये हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ये फलाना धर्म है, त्योंका धर्म है, ये वाड़ां दे विचों जिहड़े निकल जांदे हन, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਐਸੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ
परमात्म की मौज, खालसा पार ब्रह्म की फौज। ते दुनिया किहदी आ? परमेश्वर दी। ते फौज किहदी आ? परमेश्वर दी। ते फिर खालसा फौज कित्थे कित्थे काम करूगी? कल्ले पंजाब च, कल्ले इंडिया च नहीं, ये आल वर्ल्ड दे विच ही काम करेगी। कहो सतनाम। जी खालसा फौज बनाई है गुरु साहब ने, ये आल वर्ल्ड दे विच भी जदों कोई किसी ते जुल्म करेगा उत्थे जाके ये रोकेगी। ये तीजा पंथ ऐसा साजिया मेरे प्रीतम ने। कहो सतनाम। सब दा भला लोचन वाला। दुनिया कोई इसदा सानू वापसी कुछ कहे देवे या ना देवे, पर जो ड्यूटियां लातियां गुरु साहब ने वो खालसा पंथ करी जांदा। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पलंगे ते बैठ के चमकौर की गढ़ी चों अपना माछीवाड़े तो निकले आ, जा रहे न परां नूं। चार सिंघां ने, चार जनियां ने, गनी खां नबी खां मूहरे लगे आ, पिछे दो सिंह लगे आ, तीजे सिंह ने चौर साहब किया है। पांच जने मंजा चक के लई जाते आ। अगे पाठशाला जाने पछाणिया एक बंदा टक्कर गया, उन्हें भी पछाण लिया भी गुरु साहब आ, नमस्कार की। की हाल है भाई? ठीक है महाराज। ऐदा कर फिर साडे सिंह मंजा चक्की आउंदे थक गए, तू अपने घरों घोड़ी लिया के दे, असीं घोड़ी ते बह जाने आ। साडे पैरां विच थोड़ा तकलीफ सीगी, छाले छुले पै गए जदों माछी वाला लंघे। वो कहंदा जी लिया देना। अज सवाल पाया गुरु साहब ने, औखा जिहा हो गया जवाब देना इहनूं। ये गुरु साहब दे नाल घोड़ियां दा वपार करिया करदा सी, वपारी सी घोड़ियां दा। पर अज गुरु साहब ने घोड़ी मंग ली, घरे गया, घरे घोड़ी खड़ी सी, खच्चरां भी खड़ियां सी, खच्चर खोल लिया आ। गुरु प्यारिओ, आलमगीर पहुंचण तो पहला माछीवाड़ चल के रस्ते की यह घटना है। कहो सतनाम श्री। कहना लो जी, कहने की है? तेनों घोड़ी कही वड्डी उच्ची घोड़ी खड़ी सी घरे काले रंग की एक जी, वो तो मेरा जवाई लै गया। कहने फिर लै गया होगा, ये तो नहीं बहना असी। कहो सतनाम। लै जाए इनू भी लै गया होगा। सार जे बोले सह सवाए, साध का बोलिया व्यर्था न जाए। लै गया होगा, छड्ड फिर। पुट्ठा मुड़िया आया खच्चर लैके। जद अंदर गया तवेले च घोड़ी लम्मी पई है। घोड़े बहिंदे बहुत घट है, पर सेटे जे मार के फिर खड़ा हो जाते ने ये। पर घोड़ी छपाल पई है लम्मी। हनेरे दे विच जद शामां नूं मुड़ के आया, खच्चर परे बन्नती, घोड़ी कन्नी गया, लम्मी क्यों पई है, ठेडा मारिया। पैर दे विच घोड़ी दे कोल काला नाग हजे बैठा ही सीगा, ते उसने इहदे पैर ते भी डंग मारता। कहो सतनाम श्री। पहला घोड़ी मर गई सप दे डंग नाल, ते इहनूं भी वड्डा जवाई लै गया। घोड़ी भी लै गया ते इहनूं भी लै गया। इस करके वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है वो बड़ा विशाल है। पौड़ी सारे निशंग होके परमेश्वर नूं पाउणा है ते भरमां चों निकल जाओ। सतगुरु सेव निशंग भरम चुकाई है। सतगुर आखे कार सो कार कमाई है। सतगुर दी दसी हुई गल ते चलो, जो गुर कहा सकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। जो गुरु कहंदा वो काम करो, गुरु की करनी वेख के रीस ना करो भी गुरु भी ऐ करदा सी मैं भी ऐ करा। कहो सतनाम। पखंडबाजी नहीं करनी की, जो करनू किया वो करो। गुर कहिया सतगुर आखे कार सो कार कमाई है। सतगुर होए दयाल तां नाम धियाई है, फिर तैनूं नाम की दात मिलू जिहड़ी सब तो श्रोमणी है। जिहड़ा लाल भाई मरदाना वेचण वास्ते गया है, जिसका किसी नूं ज्ञान नहीं सीगा। सालसरा जौहरी नूं ज्ञान सीगा, उन्हें दर्शन करदियां 125 रुपया दर्शनी भेटा दे दित्ती आ। कहो सतनाम श्री। ते अखीर बाबे नानक नूं पुछदा मरदाना जी ये किन्ने दा बेचना दसो। कहने मैनूं तां पता नहीं किन्ने दा। जौहरी नूं पुछ, जौहरी बनया फिरदा। जौहरी नूं पुछया, कहना मैनूं नहीं पता किन्ने दा। बाबा जी फिर पूछा तुसीं दस दो किन्ने दा, किन्ने लैणे लै लैने आ। कहने मैनू नहीं पता मरदानिया, ये नाम है परमेश्वर के नाम का लाल है, बेचना है ये तो नाल ले जाईदा। कहना फिर नहीं मैं बेचदा। कहो सतनाम। फिर क्यों बेचा?
जे सतगुर कृपा करे तो वह नाम की दात जी का मुल कोई नहीं मिल जाए सिखा तैनों। सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है, नाम लैके लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। सार हुंदा फिर तत्त, जिहड़ा साडे सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ तत्त परमेश्वर है, आत्मक तत्त। सत है सत कर बाचा जान, आत्मा राम लेहो परवान, वो तत्त। कहते जे किते सतगुरु दयाल हो गया फिर तैनूं खुश होकर देऊगा नाम। फिर नाम लैके फिर नाम का लाहा खटना वधाउणा है। जिवें वपारी लोग वधाउंदे है, बाबे नानक नूं बापू कहंदा लै पुੱਤ 20 रुपये कोई वधिया सौदा करके तैनूं वाधा होवे, जे तू वधिया सौदा कीता मैं तैनूं व्यापारी बना दूंगा। तो बाबे नानक सोचा बापू का फिर फसाऊगा हुण मैनूं। 20 रुपये का सौदा की किया, बापू की गल भी पूरी करती, वो 20 रुपये साधुआं नूं भोजन छकाता। तो वह 20 रुपये का लंगर चलाया तो वाकया ही किन्ना वाधा होया, किन्ना वाधा होया। आल वर्ल्ड विच लंगर चली जाते हैं बाबे नानक दे, कहो सतनाम श्री। उस वेले भावें बापू नूं नहीं पछाण आई, गुस्सा हो गया, पर हुण तां बापू किते बैठा कहंदा होगा भी मेरे पुत ने सौदा तो सही किया सी, कहो सतनाम श्री। हुण तां किते मेहता कालू जी बैठे कहंदे होणगे ना मैं जिहड़ी मैं गल कही सी नानक जी ने कीती तां सही सी, मैनूं उदों नहीं पता लग्या। खैर यह है लाहा। तो हुण नाम का लाहा किवें मिलूगा? जप के वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, नाम जप के लाहा लेना है। लाहा भगत सो सार, ये जप जप के उस तत्त नूं प्राप्त करना है आपां। गुरमुख पाई है, गुरु वाले बन के, गुरमुख मतलब गुरु वाले बन के गुरु तो नाम की दात प्राप्त करिए। रोजाना भाई साहब सुबह प्रकाश वेले भी बाद च भी अगे पिछे भी कहती रहती है परमजीत सिंह जां होर ग्रंथ सिंह इत्थों बैठ के आप जी नूं बई गुरु वाले बनो, अमृत छको। ये लाहा लेना है कि वो ना भी बस इधरों सुनिया तो इधरों कढ़ता तो बस ठीक है बाबे ने कहा सी चल कोई नहीं। बचपन में पता नहीं, जवानी में कहना खाण पीन का समय, बुढ़ापे कहना गांह जाके छक लांगे। तो गाहां जे मिलता होंदा फिर गुरु नूं इत्थे आउण दी की लोड़ सी। ये धरती धर्मशाला है, इत्थे ही अमृत मिलूगा, इत्थे गुरु वाले बनया जाऊगा, इत्थों ही गुरु की मोहर लवा के उत्थे जावांगे, वरना मुश्किल है। कहो सतनाम श्री, इत्थों मिलूगा। तो जे बजुर्गों को कह दिए भी हुण तां छक लो अमृत, गुरु वाले बन जाओ, हुण तां काम नेड़े ही आ, पुत गांह ही छकांगे। तो गांह धर्मराज तेल दे कड़ाहे तपा के बैठा है। कहो सतनाम, उत्थे अमृत का बाटा नहीं मिलना, वो तो इत्थे ही मिलूगा। ताते गुरु वाले बनिए। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है। तो गुरमुख ना बनने के कारण मनमुख जिहड़ा है कूड़ दे हनेरे विच ही तुरिया फिरदा ते कूड़ ही इकट्ठा करी जांदा है, पंडा मनी जांदा है। ते मुड़ के पंडा चक के लिजानियां औखियां हो जाणगियां। कोई सतनाम, क्योंकि नाल जाना नहीं झूठ दा समान, ते आपां छड्डना नहीं गा, आपां इहदे विच ही फसे रह जांगे। कोई सतनाम सी। प्रीतम कृपा करन आओ सच्चे दे दर जाए सच चवाइयां। आओ जे सच्चे दे दर ते पहुँचना है तो मूँह दे विचों सच चिओवें, चिौना पानी का टपकना, पर तेरे मूँह दे विचों सच निकलना चाहिए, सच टपकना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी बाणी विच लिखता लिखते हैं कि खांदा चिट्टा झरदा काला, भाव दाता परमेश्वर दियां लैके छकदा चिट्टियां साफ सुथरियां, पर बोलदा सुनदा कहंदा ये माड़ा कहंदा। कहो सतनाम श्री। इस करके पातशाह कहने आओ जे सच्चे दर ते जाना तो सच नाल जुड़िए, सच बोलीए, थल्लियों सच शुरू करिए, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो फिर वड्डे सच की प्राप्ति होनी आ। कहो सतनाम श्री। आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहंदे सच्चे दे दर जाए सच चवाइयां, उथे सच बोलण वालियां नूं ही परमेश्वर अपने अंदर लैंदा है,
अपने अंदर प्रवेश कराउंदा है। सच्चे दे दरसाए सच वाइए, उचारण करिए, जपना करिए। जे जपोगे सच्चे अंदर महल सच बुलाइया, कहूगा आ जा पुत आ जा, दोने हाथ खोल के कहूगा आ जा मेरे विच मिल जा हुण तू, को सतनाम सिद्धि। इस करके भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ सच्चे अंदर महल सच बुलाइए, नानक सच सदा सचियार सच समाइए। पंज प्यारे साजे, पहला सारे डर गए 80,000 का इकट्ठ। अब विसाखी आ रही है अपनी, हुण जन्मदिन खालसे का। पहला सारे डर गए तो पाठशाले तलवार कढ़ के कहा एक सिर चाहिदा, एक कट्टिया, दूजा कट्टिया, तीजा मंगया, सारे उठ के दूर जा बैठे। कहो सतनाम, ये की हो गया? ये तो कड़ाह प्रसाद छकाउंदा सी, अज की छका रहा है? जदों पंजां नूं तैयार प्रत्यार करके दोबारा सरजीत करके सामने खड़े किए, फिर सारे नेड़े आ गए, कहंदी आ तो होर ही कुछ बन गया, ये तो बड़े सोहणे लगदे आ, इक्को जे बाणे। फिर सारे जिन्ने बैठे सी कहंदे जी साडे भी सिर कट लो, सानू भी इहो जे बना दिओ। सानू पहला पता ही नहीं सीगा, डर गए सी। पातशाह कहते बई हुण नहीं, हुण तां मैनू 5 ही चाहिए सी, 5 मिल गए, सोडे भी सिर कट्टांगे, सोडी लोड़ जंग दे मैदानां 'च पई ते फिर उत्थे सिर तुहाडे भी कट लवांगे, पर हुण तुसीं इन्हां 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छक के सचियारे बनो। जो जपजी साहिब 'च कहा वो विसाखी ते पूरा किया। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल, ते विसाखी ते पूरा किया। कहते लो भी हुण तुसीं सच वाले बनो, भा मेरी गल मनदे हो तो इन्हां 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छक लो, गुरु वाले बनो। अज तो बाद रीति रिवाज जिहड़ा मेरा है उन्होंने ग्रहण करो, मर्यादा भी चाहो तो तुहानू भी मैं प्रवान कर लूँगा। आओ सच्चे अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। इउं सचियारे होके सच दे विच समा जाइए। गुरु किरपा करन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।